India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. दिल्ली में सीएमपी द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी ने थेनेटो पॉलिटिक्स पर चर्चा की। दिल्ली में पोस्ट ह्यूमनिज्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सीएमपी की संस्थापक डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी ने कहा, इसका उद्देश्य लोगों को पोस्ट ह्यूमनिज्म की प्रासंगिकता के बारे में जानकारी देना। So this is for the first time I'm having this kind of, respect, regard. It came from Assam. Pritisha, please join us. अभी तक मैंने politicians को ही पहनते देखा है, तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा. So I carried it. So first of all, she is from Assam and it's her birthday today. Happy birthday to you. सारे स्टूडेंट्स के लिए समोसा और ठंडा मेरी तरफ से है, तो अभी ले आइएगा 1-2 घंटे में क्लास के अंदर. एंड हर फैमिली इज हियर, तो अभी उनकी फैमिली से इंटरेक्शन हुआ एंड आई गॉट ऑनर्ड. अच्छा वो चले गए ना, लेकिन हाँ दिल्ली में वो, हाँ दे आर इन दिल्ली, बिकॉज आई मस्ट अप्रिशिएट दिस. आई आस्क्ड हर टू लीव द क्लास. आई सेड इट्स योर बर्थडे, योर मदर इज हियर, योर एल्डर सिस्टर इज हियर, take your time. I will give you the video access of the class today. She said, no sir, I will go for my classes. I will not miss it. I repeated again. मैंने कहा जाओ, सैटरडे संडे है, एंजॉय करो. She said नहीं, मैं क्लास लूंगी. So first of all, great spirit. Now, the big announcement is that her sister, who is an actress and a model, उनका show Netflix and Hotstar पे आने वाला है. And आज गए. Okay, so she'll share the details. Put it on group also. ठीक है, नेटफ्लिक्स पे भी उनका शो आने वाला है. प्लस शी इज अ मॉडल. सो आई रिक्वेस्टेड हर दैट वेन एवर यू हैव टाइम, come and talk to our students and share your experience. So soon we will be inviting her to have a conversation with you. We meet people, we learn. So big hands for her also, for an independent girl. And once again, happy birthday. अब थोड़ी देर में समोसे आएंगे, तब तक पढ़ाई करते हैं. चलो. How to speak in Assamese? I love it. More bhal lagil. More bhal lagil. Frankly, जब भी लाइफ में लगता है ना बोर हो रहा हूँ, मोटिवेशन खत्म हो रही है, इस तरह से कुछ होता है and I get motivated that yes, I'm still in the game. So पता नहीं. बट समटाइम्स आज की क्लास में थोड़ा सा जो मोटिवेशन आने वाला है, इट्स बिकॉज ऑफ हर. सो लेट्स गो फॉर, बोर्ड चेंज हो गया. D.H. लॉरेंस, ज्यादा ही बड़ा है. नेक्स्ट राइटर डेविड हर्बर्ट लॉरेंस. व्हाट वाज द लास्ट राइटर वी डिड यस्टरडे? Yeah, Ian Fleming, James Bond. Don't forget that thing, that's important. In fact, I told you once, there is one more writer who wrote James Bond dossier. So in my yesterday's class, I told you about one more reference, Kingsley Amis, that I'll teach you in postmoderns. He also wrote James Bond series after Ian Fleming. तो ये point है, note कर लो. Chances बहुत कम है इस तरह के question के. Ian Fleming, basically known for James Bond writings, but then we have the Kingsley Amis. He also wrote James Bond dossier. During the World War I, World War II, spy fiction became famous. बहुत से writers थे ना, वो spy fictions लिखते थे, and people love these kind of books. तो अगर कोई पूछे, who is the main writer of James Bond series? Ian Fleming, right? But after Ian Fleming, Kingsley Amis.
बिकॉज जेम्स बॉन्ड सीरीज आर स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी मूवी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि जेम्स बॉन्ड बंद हो गया, चलता रहेगा, ठीक है। नाउ वी गो टू आवर राइटर D.H. लॉरेंस। डिड यू रिवाइज ऑल अदर मॉडर्न राइटर्स? बाकी राइटर्स का रिवीजन किया था? नहीं। What was the name of the hero in the Justice by Galsworthy? William Faulkner. If they ask you the theme, Justice का theme क्या था? Corruption, judiciary. हाँ, they wanted to show that judiciary doesn't care. In fact, Justice में वो ये बोलते हैं that it is the prison that makes criminals. जेल कैदी क्रिमिनल बनाती है और फिर खुद पनिश करते हैं, क्योंकि उसको बहुत छोटी सी चीज के लिए पनिशमेंट मिलता है। What is that punishment given for? क्यों पनिशमेंट मिलता है उसको, फोल्डर को? बिकॉज ही हेल्प अ वुमन इन डिस्ट्रेस, बट व्हेन ही ट्राई टू हेल्प ही एक्चुअली फोर्सेस अ चेक। चेक में कुछ अपना नाम डालता है, सेल्फ, तो टेक्निकली तो इलीगल है। भाई अगर मेरे ऑफिस में कोई बोलेगा नहीं मेरी सर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की हेल्प करनी, मैं आपका चेक थोड़ा सा घुमा दूं, तो करंट सिचुएशन में तो मुझे भी यही होगा कि जेल में चल। और वहां पे वो दिखाया जाता है दैट इज एन इनोसेंट कैरेक्टर, इनोसेंट पर्सन, इनोसेंट कैरेक्टर, इनोसेंट पर्सन। लिटरेचर पढ़ने का ये फायदा होता है। हमारे यहाँ पे जब चोरी का केस हुआ था ना स्टूडियो में, तो हमारे अपने एक बंदे ने उसकी हेल्प की थी ताला खुलवाने में, पर मुझे पता था कि इसे पता ही नहीं है कि ये चोरी करवा रहा है। तो जिसने चोरी की उसने हमारे ही एक ऑफिस बॉय को बातों में इन्वॉल्व किया, इमोशनली इन्वॉल्व किया और उससे चाबी खुलवाई। और जब मुझे पता चला कि ही इज इन्वॉल्व, जब उसको मैंने डांटा, तो देयर आई रियलाइज कि यार इसने कुछ उठाया नहीं है, इसने कुछ नहीं लिया है, इसको ये भी नहीं पता था चोरी होने वाली है। इसने सिर्फ किसी की हेल्प करने के लिए, जो एक्स एम्प्लॉय था उसने बोला कि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अंदर रह गया है, मुझे ताला खोल के दे दो। इसने दे दिया, वो सामान लेके भाग गया। तो फिर हमने इसको इग्नोर किया। इनफैक्ट उस चोरी के केस में बड़ा पुलिस एक्शन इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये भी फंस जाता। अगर मैं पुलिस एक्शन लेता प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग वाला, तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहते हैं चाबी किसने खोली, और ये भी चला जाता। और इसकी सिस्टर की शादी थी 15-20 दिन के बाद। अगर भाई जेल में चला जाता, इकलौता भाई जेल में चला जाता, तो शादी चली जाती। उस लड़की की क्या गलती है? सो देयर आई हैड टू टेक डिसीजंस दैट ओके। और बाकायदा मैंने रिटन स्टेटमेंट में भी दिया था कि जिसने चाबी खोली उसका कोई लेना देना नहीं है, मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग नहीं है, उसे पता ही नहीं था वो कर क्या रहा है। तो अगर ऐसी बुक्स पढ़ी हो तो समझ में आता है। समटाइम्स यू डू रॉन्ग बट यू आर नॉट क्रिमिनल। गलती आपसे हो गई। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार कॉलेज में क्या हुआ, आपने पेपर चुरा लिया दोस्तों के लिए हेल्प करने के लिए, मजाक है, प्रिंसिपल की नकली चाबी बनाई, पेपर निकाल लिया। अब वो आपके लिए कॉलेज लाइफ के लिए इट्स जस्ट फन, मैं माफ भी कर दूंगा। इफ आई एम द प्रिंसिपल आई बी लाइक छोड़ यार कोई नहीं, धमका धमका के छोड़ दूंगा। लेकिन अगर कोई केस बनाना चाहे तो, खास करके तुम बॉयज स्पेशली याद रखो, किसी की लड़ाई वड़ाई में मत चले जाया करो। किसी और की लड़ाई है, तुम दोस्ती के चक्कर में चले गए, 7 लड़के चले गए, मारा सिर्फ 2 ने, 5 खड़े थे, इक्वल पनिशमेंट है, इक्वल। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर लग गया ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो ये नहीं होगा कि नहीं सर मैं तो 7 खड़ा था, मैं तो कुछ कहा ही नहीं। या तो पिटने वाला खुद बोले कि नहीं सर ये छुड़ा रहा था, ये बचा रहा था, नहीं तो तुम गए। भीड़ में खड़े हो ना तो भी साथ में गए। अगर आपने चाकू खरीदा, दोस्त आपका ले गया, उसने मर्डर किया, आप भी गए। तो ये बहुत सारी चीजें ध्यान रखना, क्योंकि जस्टिस पढ़ने में आपको समझ में आएगा। ही वॉज नॉट ए क्रिमिनल बाय हार्ट, सिचुएशंस मेड हिम डू समथिंग रॉन्ग एंड द जेल, द प्रिजन किल्ड हिम एक्चुअली, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट D.H. Lawrence, come back. The first and the only writer who started studying the idea of sexuality in family. Why D.H. Lawrence is called one of the greatest writer, a classic writer, a famous writer? Because he is the one who studied the idea of sexuality in family. Timings 1885-1930. 1885-1930. We talked about this thing that in the modern age individualism came. हमने बात की थी, जब individualism आता है तो the smallest unit was family.
then multiple families living together becomes a street, a colony, then maybe some area, some sector, and then some village or district, right? Smallest unit kya hai? Family. Family in the background of World War I, II, family in the background of changes, family in the background of modernity, industrialization, but then the balance, questioning, troubles or illusion in the family got studied by him. अब आपने बोला family एक individual unit है. In the family, if there are 5 people, mama, papa, bhai, behan, mom, dad, 3 kids, yeah, 7 people, grandfather, grandmother. What about individuality in the family? In the family also individual. Every family fights. झगड़े होते हैं ना सबके. दिवाली पे ज़्यादा होते होंगे. दिवाली की शाम पे, होली पे ज़्यादा होते होंगे. क्यों होते हैं? जब एक ही घर के बच्चे हैं, एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, एक ही माइंडसेट होना चाहिए. एक ने कहा समोसे बनेंगे, दूसरे कहा नहीं समोसे नहीं बनेंगे. क्यों? एक ही फैमिली है ना? No, but even in the family, you are an individual. So where other writers, they were studying the psychological differences in the family, the characters in the family. He came with the idea of these individuals exploring their sexuality. So he's the first man who started sexuality. Yes, the quest of sexuality in the family. नहीं, मॉडर्न अप्रोच है ये. पोस्ट मॉडर्न में तो और आगे आएगा. पोस्ट मॉडर्न में तो इंडिविजुअल क्वेश्चनिंग हो जाएगी. अभी तो देखो क्या है. You live in a family, but do you live in a family as a male and a female? You live in a family as father, mother, daughter, son. रोल प्ले करते हो. बट क्या फैमिली में इंडिविजुअली आप अपने आप को एज ए मेल काउंट करके कि नहीं, उस पॉइंट ऑफ से रहते हो कि दैट हाउ 2 मेल 3 फीमेल लिविंग टुगेदर, क्योंकि आप वो पॉइंट सोचते नहीं है. बट देर आर पीपल देयर व्हेन दिस यूनिट स्टार्ट क्वेश्चनिंग अबाउट योर सेक्सुअलिटी, योर सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, फैमिली कितना इन्फ्लुएंस करती है उसको. डू यू थिंक इंडियन फैमिलीज विल अलाउ देयर किड्स to join LGBT? बोलो. हमारे पेरेंट्स को तो पता भी नहीं है. मेरे फादर को तो पता भी नहीं है गे वे क्या होता है, और मैं चाहता भी उनको पता हो. ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो जनरेशन को पता है. तो जब आप लोग पेरेंट्स होगे तो आपको बिगेस्ट कंसर्न ये नहीं होगा कि लव मैरिज ना कर ले. आपको लगेगा सेम सेक्स मैरिज ना कर ले. टैबू है ना, सोशल लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. तो इंडिविजुअल एक्सप्लोरिंग देयर सेक्सुअलिटी इन द फैमिली, मोरालिटीज के साथ, सोशल प्रेशर के साथ. सो ही इज द फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड स्टडीइंग इट. इन ऑल हिज बुक्स यू विल फाइंड दिस कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन वी विल गो फॉर स्पेशल रीडिंग ऑफ सन्स एंड लवर्स एंड लेडी चैटर्जीज लवर्स. लेट्स गो फॉर इट. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू रिमेंबर दिस most important work only for chronology. Only for chronology. Last to last exam, DS Lawrence chronology पूछी गई थी. हर बैच में स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूं, forget anything but in chronology इसको पहले कर देना. क्लियर आंसर था. आंसर वॉज इजी. एक ऑप्शन में व्हाइट पिकॉक सबसे आगे था. इफ यू फाइंड व्हाइट पिकॉक, डोंट चेक अदर बुक्स, जस्ट टेक. इट्स द फर्स्ट वर्क. So you don't have to read it. No need to read. But for the chronological purposes, this is the first work, 1911. Then comes classic. Sons and Lovers, 1913. Also in the syllabus of UPSC. Sons and Lovers will answer you that why India has a traditional historical system of सास बहू. सास बहू का झगड़ा सरप्राइजिंग है? सरप्राइजिंग है या एक्सेप्टेड है? पता है कि हाँ भी आप एक्सेप्ट करते हो ना, क्या होता ही है. कोई आपको बोले सुन तुझे पता है मेरे घर में सास बहू लड़ती है, आपको तो हर घर में लड़ती है. क्यों? वाई? जब सास खुद शादी करके ला रही है, खुद सेलेक्ट कर रही है, और सास भी कभी बहू थी, तो फिर लड़ाई क्यों है? सास बहू की लड़ाई में बाहुबली भी मारा गया था. जब तक शादी नहीं की थी बाहुबली था. क्योंकि दिस बुक विल टेल यू सन मेल, सास मदर इन लॉ फीमेल, बहू और वाइफ फीमेल, अ मेल टॉर्न बिटवीन 2 फीमेल.
ये बताएगा आपको. Sons and Lover, the role of mother, Paul Morrell, his two girlfriends, why mother doesn't want him to be with someone or why she wants him to be with someone. डिस्कस करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट बुक जी. हाँ, दैट विल स्टडी. जब पढ़ेंगे ना एडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, वी विल स्टडी. अभी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं. एडिपस एंड इलेक्ट्रो. रेनबो बुक दैट डील्स विद होमोसेक्सुअलिटी. टाइमिंग्स याद रखना. Women in Love 1920. I'm writing the last book here. ऊपर लिख देता हूँ. And then the next book, Lady Chatterley's Lover. There is a Netflix show also. Lady Chatterley's Lover, Netflix show. There are many other works that he has written. We will write their chronology also. But these are the classics, most important. Lady Chatterley's Lover, first publication 1928, immediately banned. लिखते ही बैन हो गई थी. लिखते ही बैन हो गई थी. D.S. Lawrence is also the first person to use the abusive word F, right? आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना. मैं स्टार स्टार बना देता हूं, है ना. पूरा कर लेना आप. मैंने एक ऐसी फंकी सी टी शर्ट मंगा ली थी कोविड टाइम. ऑफलाइन में तो आना था नहीं. मंगा लिया, कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है ऐसा मिंत्रा पे. मेरे पापा पहन के घूम रहे बाहर. मैं पापा बोला, पापा ये मत पहनो. क्यों, दिक्कत क्या है? मैंने कहा पापा वो वैसा है, लड़कियों टाइप है, हटा दो. उनको कैसे बताऊं कि आपके बेटे ने क्या लिखी हुई लाइन उठाई है. तो पहले तो पापा बहुत मारते हैं. फिर फाइनली वो हटा ही दी हमने टी शर्ट. हटा दो यार. ओके, सो द इन विच बुक? Yes. So the word was common, but in literary use, in literature, it wasn't used. There are many words which are objectionable. So normally writers, sensitive writers, sincere writers, they don't use it. He just continuously uses it, and this is also one of the reason book got banned. Book ban ho gayi thi. We will study this also. Now we have to go for some other books because there are questions from different titles with chronology. ठीक है? बेटा दो, इसको डिलीट करूं? Now, let's go for some other works with chronology. Kangaroo, 1923. बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था. 1923. बहुत बेसिक क्वेश्चन आ चुका है. Story is set in. They gave 4 countries. Which country is supposed to be the? Yes. So if you don't know Kangaroo, question is gone. No need to read, but the setting has been Oz, set in Australia. His own experience. No need of in-depth reading. Plumed Serpent, इसका भी setting पूछा हुआ है. The Plumed Serpent. Setting is Mexico. Based on his own experience, PYQ. Setting is Mexico. Timing, 1926. Both of these works setting has been asked. Then his short story collection, The Prussian Officer. His short story collection. The Prussian Officer, 1914. Another short story collection, England, My England. England, My England. Yeah, 1914. टाइटल्स याद रखना इनके.
the match the following, they can ask you these kind of questions. England, my England. He has written 50 plus more books, so if they want to surprise you, then it can be any question. Most expected questions: Sunset Lovers, Lady Chatterley Lover, Women in Love, Rainbow. These are the most important works. Now, his non-fiction. Write down this non-fiction. Psychoanalysis and the unconscious. Non-fiction. And the unconscious. Psychoanalysis and the unconscious. Psychoanalysis and the unconscious. Now, we go for some books, important works. It's a non-fiction. Timing लिख लो उसकी, वैसे important नहीं है. 1921. If they ask it, it will be only the part of match the following. जी. एक ही वर्क है, and. It's and. एक ही है. Now, we go for a very important work, Rainbow and Women in Love. पहले वो कर लो. Rainbow. And next book is Women in Love. Point to be noted, a surprising question was asked Jamia MPhil exam many years back. So technically these are two different books, 1915, 1920. So remember this thing, Women in Love is a sequel. Women in Love is a sequel. So first point that you have to note down, Rainbow was published in 1915. Women in Love got published after 5 years. So first of all, these books are connected. And as they are connected, it was a question of Jamia MPhil entrance exam. These two books later got published under the common title, The Sisters. So these two novels, as they are the connected stories, the story and the sequel. So the story and the sequel were collectively published under the title, The Sisters. So the story deals with two girls, Ursula and Gudrun. दोनों के नाम important हैं, names are very important. Ursula and Gudrun. They both are homosexual, married to husbands who are homosexuals. Ursula and Gudrun. It's a troubled married life of these girls. Troubled married life of these girls. Troubled married life of these girls. Now, no questions from in-depth. Characters पूछे गए हैं. Theme of queer, theme of homosexuality is very important. So make sure you remember this point. इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की. Psychological novel है. How they struggle in a family, fighting their sexuality. मैंने आपको बताया था एक बार मेरी स्टूडेंट थी हरियाणा से, तो some days like she wanted to talk, तो उन्होंने आके बातचीत की. Then she told me that she has different orientation. तो coming from the background of Haryana, where you cannot speak normal things, उसको इतना मैं सर किससे बात करूं, किससे बोलूं, बोल नहीं सकती कुछ. And she was having family pressure of meeting boys and get married. और वो कह रही मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं, क्या करूं. तो she told me a lot of other stuff. There are many secret clubs where people meet these kind of people. उसने मुझे बहुत सारे नाम बताए थे, चीज़ें बताई थी. ये भी बताया था कि वहाँ पे हमसे हमारे रियल नाम नहीं पूछे जाते हैं, हम अपना फेक नेम बताते हैं, कोई किसी की रियल आइडेंटिटी नहीं जानता है. एंड नाउ देयर आर एप्स ऑल्सो, दे मेक पीपल मीट विद दिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशंस. तो आई जस्ट गिव हर सिंपल सजेशन दैट इफ यू आर स्ट्रगलिंग, उसके अंदर वो स्ट्रगल दिख रहा था. मतलब आई वॉज टॉकिंग टू हर एंड देन आई फेल्ट शी इज नॉट द वन हु सिट्स इन माई क्लास. When she started opening up,
तो मुझे उसको देख के लग रहा था कि ये कोई अलग इंसान है जो किसी और बॉडी के अंदर है, लाइक योर बॉडी इज डिफरेंट एंड यू आर डिफरेंट. सो आई जस्ट सजेस्टेड, मैंने कहा देखो इंडिया में तो ऑब्वियसली यू विल बी किल्ड एंड इट विल बी मिजरेबल फॉर यू, सो ट्राई योर बेस्ट टू स्विच अब्रॉड. तो फाइनली शी इज इन स्वीडन. उसके घर से वो दिखता है जो कौन सी लाइट्स होती है, नॉर्दर्न लाइट्स. सो व्हेन शी गॉट शिफ्टेड देयर, पीएचडी वेस्डी के नाम पे, शी क्वालिफाइड नेट 2 times. इंटेलिजेंट तो होते ही है बच्चे, तो वो वहाँ पहुँच गई है. तो जब वो सेटल वगैरह हो गई तो उसने मुझे बताया था कि सर मेरे घर से नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है. उसने मुझे बकायदा एक छोटा सा वीडियो भेजा था कि सर ये मेरे घर से बालकनी का सीन है. तो अभी शी इज लिविंग हर लाइफ. अब तो 4 से 5 साल से मुझे पता भी नहीं कहाँ है. बट देर आर सिचुएशंस एंड दैट्स व्हाट D.H. Lawrence इज ट्राइंग टू शो. Struggle inside and then struggle outside. First you're struggling inside, then you have to deal with others struggling outside. Now we go for next story. इनको याद रखना. Sons and lovers. This book, Sons and Lovers, and especially D.H. Lawrence, they show you this, that every human has a sexual orientation. He or she has desires, and to gratify their desires, they don't need psychological or emotional attachment every time. It is not compulsory. It is not needed. What happens here? We have a man, Walter Morel. He meets a woman, Gertrude, in a village party. गांव में सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है. ये मिलता है उससे, गर्ट्यूड से. He meets Gertrude Morel in a village celebration. They dance, drink. The book got published in 1913. They dance, they drink, and get infatuated for each other. So it's the result of desires. So they don't spend a lot of time to understand each other. They don't know whether they are compatible for each other or not. They are young, they are enjoying the village evening, they both are drunk, and they both get infatuated with each other, which results in a marriage. तो इनकी शादी हो जाती है. Walter Morel, Gertrude Morel. Now, having fascination of getting married and then living a life after getting married are 2 different things. जितना fascination लगता है बचपन में, बच्चे शादी वादी कराते हैं गुड्डे गुड़िया की, उन्हें मजा आता है, लाइट्स होंगी, अच्छी अच्छी ड्रेसेस होंगी. उसके बाद रियलिटीज, अगले दिन से रियलिटी शुरू हो जाती है. मेरा एक दोस्त है ना, उसकी शादी हुई बचपन में, तो वो MA पॉलिटिकल साइंस था. तो पॉलिटिकल साइंस की कोई इतनी वैल्यू थी नहीं ज़्यादा. तो उसके फादर ने जाके बता दिया कि ये MSc मैथमेटिक्स समथिंग है. झूठ बोल के शादियाँ हो जाती हैं इंडिया में. तो उसने MSc मैथमेटिक्स बोला, उन्होंने लड़की बोली MA इंग्लिश है. दोनों की शादी हो गई. बाद में पता लगा दोनों झूठ बोल रहे थे, लड़की ग्रेजुएशन में और वो ऑलरेडी. फिर उसके बाद ट्रबल शुरू होती है. सो यस, द ट्रबल स्टार्ट्स. वॉल्टर मॉरेल इज नॉट अ रिच मैन, इज अ स्ट्रगलिंग फाइनेंशियल बैकग्राउंड गाय. अब इसका जो है स्ट्रगल चल रहा है. This man is not rich, not able to afford all she wants. She comes from a rich family. ये सब लिटरेचर जब पढ़ लोगे ना तब समझ में आएगा पेरेंट्स लव मैरिज के खिलाफ क्यों होते हैं. क्योंकि वो इमोशन में नहीं होते, उन्हें बाकी सब दिख रहा होता है. उन्हें रियलिटी दिख रही होती है ना. वो क्यों देखते कि कोई बात नहीं, लड़के की जमीन कितने वो भी इंपॉर्टेंट है. कि उन्हें पता है कल को लड़का थोड़ा दाएं बाएं निकल गया तो एटलीस्ट तुम सड़क पे नहीं होगी. जोश जोश में शादी कर लिया. अकॉर्डिंग टू D.H. Lawrence, इट वाज हार्मोनल डिजायर्स. ठीक है, शादी हो गई. नाउ इट स्टार्ट्स, दिस रिजल्ट्स इन फाइट्स. धीरे धीरे फाइट्स होनी शुरू हो जाती हैं. द फाइट स्टार्ट्स. सो वॉल्टर मॉरेल स्टार्ट्स ड्रिंकिंग. अब वॉल्टर जो है वो धीरे धीरे ड्रिंक्स शुरू कर देता है. थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. डिटेल में वो करेंगे जो काम की चीज़. इन शॉर्ट, इमोशनल डिटैचमेंट, फिजिकल डिटैचमेंट. Their regular fights result in first emotional detachment.
it will lead to physical detachment. Their regular fights result in emotional detachment, physical detachment. अब देखो क्या होता है उसके बाद. Now, being a woman, as she's missing the spark in her life, she starts paying her attention towards her kids. By the time she has a kid, William, Paul, and Walter is totally detached. Soon he dies. Walter की death हो जाएगी. Husband से detach हो गई है. There is an emotional void, physical void. Then she shifts her attention towards her kids. William is her favorite child, the elder one. Now remember this point. It is an attachment, but it's not some lust. So just remove the physical things, rest it's same. A man in the life. So having the idea of a man in the life, a woman in the life, maybe anyone, but different sex. So there is a natural attraction between different sex, and she starts having all her attention on her son William. It goes on. William is mama's boy. But then soon, William goes to work somewhere, and through some disease, William also dies. Again, she is all alone. There is no man in the life. William की भी death हो जाती है. Now, with Paul, she doesn't have that bond, because it's like a woman in love with someone, so she cannot shift her love to anyone easily. She doesn't have that bond. But once Paul is suffering from pneumonia, she is taking care of her son, and there she gets confused with the identity of a mother or a woman and forms some kind of attachment. तो पॉल बहुत बीमार होता है, ये इसकी बहुत सेवा करती है, और वहां से एक अटैचमेंट स्टार्ट होता है. And there she shifts her attention on Paul. And Paul becomes mama's boy. Like paying all type of attention. How do you dress up? Your hairstyle, this, that. All decisions taken by mother. अब वो क्या है? He is filling the void. So it is not sex, it is not physical relation. It is just everything else except the physical relation. And sometimes you also don't understand that bond. The attachment, the attraction, and sometimes you're not able to name it, right? अब ये जो affection, attention चल रहा है, Paul is a grown-up boy, and Paul comes across, has two women in lives. अब इसको दो लड़कियां आती हैं जिंदगी में, Miriam and Clara Dobbs. Divorced woman. Divorced woman होती है मिस्टर बैक्स्टर की. पढ़ा आपने ये? बहुत बढ़िया. Paul gets involved with Miriam, spends time with her. Miriam is a simple rustic girl following Christianity. Miriam जो है वो धर्म को फॉलो कर रही है. Simple रूरल गर्ल. सो एक सिंपल सोबर इनोसेंट गर्ल जो रिलीजन को फॉलो कर रही है. एंड एज पॉल इज ट्राइंग टू लाइक कोर्ट हर, रिलेशनशिप स्टार्ट्स, अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे गेट फिजिकल, पॉल फाइंड्स हर एक्सट्रीमली कोल्ड. पॉल, अब यहां पे देखो क्या है, एंटायर लिटरेचर डील्स विद लव. लैला मजनू, हीर रांझा, दो चार नाम बता दो, जी असरा वालों के बता दो, है ना, एक्सट्रीम लेवल लव. पर एक्सट्रीम लेवल लव में कहीं ये बात आई है फिजिकल कंपैटिबिलिटी है कि नहीं? कोई बोलता है? क्योंकि तो इमोरल है, हमारे कल्चर में तो इमोरल है ना. शादी से पहले आप लोग बोल सकते हो बातचीत करके आपस में माँ बाप से कि भाई हमें हमारी फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी देखनी है, पहले घर से निकाल देंगे, मार डालेंगे. पर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? दैट प्यार आपको किसी के नेचर से हो सकता है ना, बाकी चीजें जरूरी नहीं है. ही डजंट फील सेटिस्फाइड विद मिरियम. देन ही कम्स अक्रॉस क्लारा.
Clara is a divorced woman having troubles with her husband, married life. She is sexually more active. She is sexually more active. Now he gets torn. अब Paul फंस जाता है. Physically he is attracted towards Clara. Morally, emotionally थोड़ा बहुत attracted towards simple girl Miriam and Clara. And here we get the influence of his mother also. First of all, his mother is not happy that Paul is dealing with. Paul has a girl in life. Rivalry. पहले rivalry scene create होता है. तो mother is not happy. नेचुरल साइकोलॉजी है ये, नेचुरल साइकोलॉजी. इसमें ऐसा नहीं कि उसकी मदर खराब है या उसकी मदर अच्छी इंसान नहीं है, नहीं. नेचुरल राइवलरी है. मेरे बेस्ट फ्रेंड का कोई और बेस्ट फ्रेंड बनेगा, मुझे अच्छा लगेगा? आप क्या चाहते हो कि आपके बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड आप ही हो? आप अपना टाइम किसी दोस्त के साथ दे रहे हो, दोस्त कह रहे हैं यार मेरा एक और दोस्त है, मुझे उसके साथ अच्छा लग रहा है, नेचुरल जेलसी होगी. तो ये नेचुरल जेलसी है. एंड देन एज शी नोज दैट इट इज द लॉ ऑफ नेचर that the boy has to get married to someone, she wants Paul to be with, who said Clara? What does she want Paul to be with? Whom? Miriam. Why? Because she is religious. उसको पूजा पाठ करवानी है अपने घर पे. She finds herself strong in comparison of Miriam. उसे पता अगर मैं हूं और मिरियम है तो मेरी ज्यादा वैल्यू रहेगी. If you have to choose one rival, Clara is strong and Clara has trapped him. क्योंकि वो मेंटली फिजिकली उसके साथ ज्यादा है. उसको समझ में आता, वो चाहती, मां चाहती इसके साथ रहे, क्योंकि जब इसके साथ रहेगा तो गर्ट्यूड की भी अपनी वैल्यू, अपना इंपॉर्टेंस बेटा कब्जे में रहेगा. ठीक है, इसलिए बहू सबको गाय चाहिए होती है. क्योंकि शी डजंट वांट. अब अगर क्लारा से शादी हो जाए इन केस सपोज, तो क्लारा की ही सुनेगा 110%, फिर मामाज बॉय नहीं बन पाएगा. तो शी वांट्स, शी टेल्स हिम टू गो फॉर हर. बाय द टाइम क्लारा और इनका सेटलमेंट हो जाता है, she gets back to her husband, and Gertrude, who is struggling, she is having a conflict, falls sick. अब ये अंदर से खत्म हो रही है, मर रही है. She falls sick and later dies. Gertrude falls sick and dies. यूपीएस में तो हमें ये बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, बहुत एक एक चीज, गर्ट्यूड की साइकोलॉजी सब समझाना पड़ता है. जब पॉल मिरियम की बातचीत करता है, गर्ट्यूड टॉपिक चेंज कर देती है बार बार. वो चाहती नहीं सुनना, बात करना. पॉल मदर से बात कर रहा है कि मैं उसके साथ रहूं या क्या हूं, वो सुनना नहीं चाहती है. शी चेंजेस द टॉपिक. द वे पॉल एंड मिरियम टेक वॉक टू द चर्च, शाम को लॉन्ग वॉक्स पे चर्च पे जाते हैं, तो उन सबके साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस है. हमें उसमें इतना नहीं जाना है. जैसे मैं 10 थिंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, मिरियम, क्लारा डॉब्स. बैक्स्टर का क्वेश्चन आ चुका है, क्लारा डॉब्स का हस्बैंड, तो वो भी याद कर लो. हस्बैंड्स नेम वॉल्टर मॉरल, गर्ट्यूड मॉरल, पॉल मॉरल, ये सारे नाम याद कर लेना. सन्स एंड लवर्स हु आर, हाँ बाकी हाँ एक दो किड और है, एक दो और भी बच्चे हैं. नाउ सी दिस थिंग इन दिस बुक. नाउ समथिंग दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. कैरेक्टर्स, themes, so we already have talked. Freud's study of Oedipus complex has been applied here. इस बुक में Oedipus complex applied है. Sigmund Freud came with his idea that male and female, they have a natural attraction towards each other. They are like different poles attracted at each other. तो ये natural attraction है. गोवा गए हो? पैसे कोई गोवा गए? आप लोग गए हो ना? आपने वहाँ टीटोज लेन देखा होगा, गोवा के सबसे फेमस क्लब्स में से क्लब एरिया है. वहाँ पे आप जाओ टीटोज क्लब में, क्या होता है, जो हर होटल के बाहर एक मॉडल या कोई भी फॉरेनर्स, रशियंस वगैरह बहुत होते हैं वहाँ, वो ऐसे वाइन का ग्लास लेगी और वो गेट पे खड़ी रहेगी. एंड शी विल डू एनीथिंग व्हाट शी वांट, डांस करना, बात करना, बट वो गेट पे बैठी रहेगी. अब जो झुंड आता है लड़कों का,
वो देखता बाहर ये बैठी है तो अंदर कौन होगा। फिर वो क्या करते हैं, ऐसे बाउंसर्स खड़े होते हैं, वो 5,000 की टिकट खरीदते हैं, 5,000 के अंदर जाके देखते हैं अंदर कोई नहीं। उनको गेट पे बैठने का, ऐसे वाइन लेके बैठने का, एक दिन का 10 से 12,000 मिलता है। तो जितने भी फॉरेनर्स गोवा में कमाई करते हैं, वो एक अच्छा सा ड्रेस डाल लेंगे जो अट्रैक्ट करेगा लोगों को, और वाइन वगैरह लेंगे, और वो ऐसे क्लब के बाहर ऐसे ऐसे करते रहेंगे। आपको लगेगा यही क्लब सबसे ज्यादा चल रहा है, आप 5,000 देके फंस जाओगे। अब उस एक के चक्कर में 5 घंटे में 500 लड़के भी अंदर गए 5,000 देके, कितनी कमाई उसकी। क्यों अंदर जा रहे हैं वो? अच्छा, उस क्लब के बाहर मैं बैठा रहा हूं ऐसे करके, कोई लड़का एंट्री करेगा, ये ऐसे रूप बना के ऐसे बैठा हूं, ऐसे कर रहा हूं, कोई जाएगा? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। अपोजिट सेक्स, तो उन्हें पता है कि वो क्यों आएंगे। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी यही करते हैं, वो लड़कियों की फीस 50% 80% डिस्काउंट दिखा देते हैं, ठीक है, डिस्काउंट फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। उनका ये होता है कि 20 25 50 आएंगे, उनके पीछे पीछे 200 300 और आ जाएंगे, एडमिशन हो जाएंगे। और बहुत तरीके हैं लोगों की चीजें करने के। सो दोज हू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी, क्लब एंट्री फीमेल के लिए फ्री होती है। क्यों फ्री होती है फीमेल के लिए क्लब एंट्री फ्री? क्योंकि आप लड़की को अगर फ्री एंट्री दे रहे हो, तो अगर उसके साथ अपना कोई मित्र है तो वो तो वैसे भी आएगा सुरक्षा के लिए, तो भी पैसे वैसे हैं। और 10 फीमेल अगर हैं तो बाकी लोग भी आ ही जाएंगे, प्लस लोगों को सेफ लगता है। दारू होता है, क्या हो रहा है? क्या उल्टा है? कहां पे? बिहार में उल्टा है? ये कह रहे हैं कि आपकी क्लास में उल्टा है, हमें डिस्काउंट दीजिए क्योंकि बॉयज कम है। अरे नहीं, बॉयज कम ही आते हैं यहाँ पे, बॉयज कम ही आते हैं। तो ये थ्योरी जो है ना, दिस थ्योरी एक्चुअली गिवन बाय फ्रॉइड, दैट देयर इज अ नेचुरल अट्रैक्शन। अब वो नेचुरल अट्रैक्शन में यू डोंट हैव टू बी अ लवर और अ बिलवेड, एनीबॉडी, नेचुरल अट्रैक्शन विल ऑलवेज बी देयर, ये रहेगा ही, व्हिच रिजल्ट्स इन योर आइडिया ऑफ मेल गेज। पढ़ा है मेल गेज? द थ्योरी दैट आई मेंशन्ड यू, कर्नाटका सेट क्वेश्चन आया था, आई विल टीच यू। यस, बॉयरिज्म वाला। This comes in the book, The Visual Pleasures of Narrative Cinema. Many time repeated. Last question Karnataka said. The Visual Pleasures of Narrative Cinema. It's a study, part of media theory, part of culture studies. The Visual Pleasures of Narrative Cinema. PYQ net, recent question. The day before yesterday we talked about Karnataka set. She is the writer. Laura Mulvey, Visual Pleasures of Narrative Cinema. I will teach you this मीडिया थ्योरी में पढ़ाऊंगा, मीडिया थ्योरी में पढ़ाऊंगा। All, if you see the revolution of media, one of my students, she had an interaction with Ramesh Sippy, the director of Sholay. He was in Venkateshwara College. She had a chance to ask, तो वो आपकी तरह से क्लास में स्टूडेंट थी, तो उसने मुझे बताया कि सर 2-3 दिन पहले रमेश सिप्पी आया था, तो हमने उससे एक क्वेश्चन पूछा दैट यू आर अ पर्सन हु मेड शोले, तुमने शोले जैसी मूवी बनाई है, नाउ व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दीज न्यूडिटीज, अब तो ऐसी मूवीज क्यों बना रहे हो जहाँ पे ये सब चीजें ज्यादा हैं? उसने बोला सर, उसने ब्लंटली बोला रमेश सिप्पी ने, मत देखा करो, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। व्हाट इफ यू ऑल डिसाइड हम नहीं देखेंगे ऐसी मूवी, फिर या तो वो सड़क पे आएंगे या फिर मूवी ठीक करेंगे, तो फिर कौन देखने जाता है? क्या वो ऑडियंस सबको बोलते नहीं हम तो ऐसी मूवी देखेंगे? जो देखने जाता है वो बोलता है ओपनली, वो छुप छुपा के जाते हैं। क्यों आइटम सॉन्ग्स रखे जाते हैं? अगर हम एक अच्छे देश के लोग हैं, हम पढ़े लिखे देश के लोग हैं, तो हर मूवी में जानबूझ के आइटम सॉन्ग्स रखे जाते हैं जिसमें वो, आजकल तो डबल मीनिंग लाइंस भी यूज होने लगी हैं, लोग पसंद करते हैं। मेल फीमेल अट्रैक्शन दैट रिजल्ट्स इन वॉयरिज्म, मेल गेज। द आइडिया ऑफ मेल गेज, इट वाज गिवन बाय लॉरा मल्वे इन द विजुअल प्लेजर्स ऑफ नैरेटिव सिनेमा। मेल गेज को स्टडी किया था फ्रॉइड ने, स्कोपोफिलिया, सिगमंड फ्रॉइड कॉल्ड इट स्कोपोफिलिया।
Male gaze is also called scopophilia. Male gaze is a modern word. This word came in modern age. Sigmund Freud already called it scopophilia. Scopophilia, deriving pleasure by looking at the other one's body. So it is equally for male and female, but as it is studied in the case of male. Why staring? Why? घूरते हैं लोग, देखते हैं. So that is the part of scopophilia, male gaze. उसको सिनेमा वाले भुना रहे हैं. उन्हें पता है कि क्राउड को, एंड समटाइम्स यू डोंट नो इट दैट यू आर द पार्ट ऑफ इट. सारे प्रोफेसर्स को बिठा दो, फिर उनको कुछ दिखाओ ऐसा, सब बोले गलत है गलत है गलत है, अंदर से किसी को बुरा नहीं लगेगा. हटाओ ना सारे काम. आप सोशल काम पोस्ट हटा दो ना. अल्टीमेटली तो मेल और फीमेल है ना, नेचुरल रिडक्शन है. दिस रिजल्ट्स इन एडिपस कॉम्प्लेक्स. क्लियर? ठीक है. एनी क्वेश्चंस? So the Oedipus complex that has been applied here is actually taken from the story of Oedipus. Sophocles. Remember we have talked why his foot was swollen? He was picked from his foot. The swollen foot. Full title है Oedipus the Rex. Yeah. Oedipus the. What was the riddle of the Phoenix? Sphinx riddle. The one who can walk on four legs. The riddle asked by Sphinx. What is that creature that walks on four legs in the morning, two legs in the afternoon, three legs in the... What is the third leg? The stick. Yes. बुढ़ापे में. Great. ठीक है. So Oedipus complex has been applied here. Mother-son attraction. Just opposite of Oedipus complex? Yes. बहुत बढ़िया. शाबाश. Oedipus का just opposite. और वाइस वर्सा. एंड इलेक्ट्रा मेल को सुपीरियोरिटी देते हुए किया था उसने, बट रिजेक्टेड नहीं है. फादर डॉटर. Electra complex opposite father daughter. And please remember this thing, कभी किसी इंटरव्यू में बोल मत आना. Oedipus complex doesn't mean physical involvement. It may result, but that is incest, right? But it is not actually needed. It is mostly psychological. Psychological, right? Now we go for next one. लेडी चैटरलीज लवर 1928. वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको ना कि पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा. पीडीएफ में भी आप थोड़ी चीजें पढ़ लेना, आपको और अपनी तरफ से भी चीजें मिल जाएंगी. सो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्क, इट वाज इमीडिएटली बैन. तो फर्स्ट थिंग तो यही नोट करो, दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, दैट इट वाज रीपब्लिश्ड इन इमीडिएटली बैंड. 1928 because of obscenity, vulgarity. So the charges that were laid against this book was obscenity, vulgarity. And the office that was actually responsible to ban these kind of books, Lord Chamberlain's house. जो ऑफिस था वो ये था, Lord Chamberlain's house. This was the office responsible for ban these kind of works. The moral guardian, moral responsibility, moral guardianship. Lord Chamberlain's office. It got abolished by 1965.
1965 में ये अबॉलिश हो गया, ऑफिस बंद कर दिया इन्होंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्यों? दिस ऑफिस वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर censorship, expurgation, or all types of control over publishings. When this office was abolished, some other books which were banned, they also got published. पोर्टनोइज कंप्लेंट दोबारा पब्लिश हुई थी, एल्डस हक्सले ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिर से पब्लिश हुई थी, 1984 पब्लिश हुई थी। सो ऐसे बहुत सारे बुक्स थे जो पब्लिश नहीं हुए थे, बैन हो गए थे। जैसे ही ऑफिस खत्म हुआ सब पब्लिश हो गया। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दे कैन आस्क यू दिस, ठीक है? द रीजन ऑफ publication of these books after 1965 is this. Now, point to be noted, Lady Chatterley Lover deals with upper class lady. Write on this, likho, Constance Chatterley, upper class lady, Constance Chatterley. अब देखो इसमें क्या है? She is married to a rich man, a real rich man, aristocrat. That aristocrat is an army officer. अब होता क्या है? Because of an injury, he becomes half. She is married to a rich man, aristocratic man. उसका नाम भी लिख लो, Clifford Chatterley. Married to Clifford. She is married to Clifford. Now Clifford gets injured and becomes paralyzed. So when he becomes paralyzed following an injury, his half body, the lower body, is completely paralyzed, which results in impotency. His half body, the lower body, that is completely paralyzed. So in short, he becomes sexually inactive. Sexually inactive. 65. अब देखो क्या होता है. For some time they are together, but then Lady Chatterley, a young woman, starts struggling for the bodily desires. अब होता है ये जिसकी वाइफ है Constance, Lady Chatterley famously actually, so starts struggling with her body desires versus mind. अब mind जो है वो कुछ और कह रहा है, body कुछ और कह रही है. These kind of books you will not find in Elizabethan, Restoration, Augustine, because these things were not being discussed at that time. The way Kalidas has written Kumar Sambhav that deals with the love making of Shiva and Parvati. तो अगर कालिदास आज के टाइम किताब लिखते तो उनको उस किताब पे भी बैन कर देते। तो अब ये होता है, which is reality, the part of life, it's actually real. So you struggle now emotionally, mentally. She knows that leaving her husband or going beyond the restrictions is wrong, but the body is not listening, body is not understanding, and here she finds an attractive man in her house only. Olive Mellors, इनका नौकर होता है। Gamekeeper, the one who takes care of the farmhouses, barn area and stables, horses. घोड़ों की रखवाली करना, farm areas को handle करना. He is represented as a muscular, tall, sturdy man. Represented as a muscular, tall, sturdy man, representing manhood. Now the affair starts. So it has portrayed the struggle, but then the affair starts. Problem is that the gamekeeper Olive Mellors thinks he falls in love with her, and he also starts dreaming about this thing. For him, it is fascination. For him, it is fascination that having an affair with an aristocrat woman, and he also starts dreaming about becoming rich. अब इसको भी समझ में आ जाता है। उसे लगता है हस्बैंड तो वैसे ही हाफ पैरालाइज्ड है, और इतनी अमीर लेडी जो है, शी इज हैविंग इंटरेस्ट इन मी एंड इनफैक्ट एन अफेयर विद मी, तो उसको भी कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स
सही होते लगते हैं. Then when Lady Chatterley realizes that Olive has started controlling her somewhere, उसे समझ में आता है कि ज्यादा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है. That Oliver has started controlling her. She stops all types of connections with him. And the famous scene comes where Lady Chatterley is at the top of the stairs. Olive, who just has confessed his extreme love, ये आके बोलता है कि अब तुम क्यों मुझसे दूर हो रही हो? Like we have started a serious love story and somewhere I'm involved with you. और ये अपनी जो खुद की इसकी beloved उसको छोड़ देता है अमीर बनने के चक्कर में. तो इसको ये हो जाता है कि how can you ditch me like this? How can you move back? Then she says that the gap between me and you is this. This stairs represent class gap. So the book also deals with class conflict. The book deals with class conflict. The ending of the book is मेलॉर इसको फिर एक लेटर लिखता है. मेलॉर लेटर लिखता है एंड इसमें क्रिश्चियनिटी का लास्ट रेफरेंस है. मेलॉर लीव्स हर, राइट्स अ लेटर, does some emotional confessions and lady turns towards church. लास्ट में सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. तो इसमें ये दिखाया गया है कि इनका जो बॉन्ड था, where the lady was very much conscious about this thing, her limitation, though she also gets emotionally involved, but she was always conscious about the class gap, morality and what aristocratic families will say. उसे ये था कि मेरा स्टेटस सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा if I get involved. तो इसमें ये दिखाया गया कि कोई प्योर लव नहीं है. इसमें ये है कि क्लास, सोसाइटी, मोरालिटी एंड बॉडी नीड्स, ऑल दीज थिंग्स एग्जिस्ट टुगेदर. पढ़ लेना इसको. नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट राइटर. नेक्स्ट राइटर D.S. Lawrence you have done. नेक्स्ट देखो, अच्छा राइटर है, हेनरी जेम्स. We have to wind up James Joyce, Henry James, Joseph Conrad, ये खत्म करने हैं आज. And then lunch break के बाद we'll go for Virginia Woolf and some others. दिल्ली में सीएमपी द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी ने थेनेटो पॉलिटिक्स पर चर्चा. दिल्ली में पोस्ट ह्यूमनिज्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सीएमपी की संस्थापक डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी ने कहा, इसका उद्देश्य लोगों को पोस्ट ह्यूमनिज्म की प्रासंगिकता के बारे में जानकारी देना है.